Good morning, students. So first passage is how to run a publisher and author David Harju and what makes a good management book. So first have na MCQ. What does the writer say about the increase in number of management books published? Author की कह रहा number of management books published the increase ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਦਾ आंसर हैगा B. It is likely to continue. ਇਹਦੀ location है paragraph A ਚ आ जाओ third line. The last few decades have seen the stream of new titles fell into a flood कि मतलब नवे titles आ रहे हैं books ਦੇ काफ़ी ज़्यादा in a flood ठीक है. By 2000 the total for the year had risen to in 3203 like इतना ज़्यादा rise हो चुके हैं and the trend continue हो रहा है ठीक है. So the option is B. It is likely to continue. Second is what does the writer say about the genre of management books? Genre means type या फिर किस तरह दी लाइक आ रही हैं बुक्स तो राइटर ਉਹਦੇ बारे की कह रहा. The answer is C. All sorts of people have felt that they should be represented. The answer is in paragraph B. देखो management consultancies, professional bodies and business schools were part of this new phenomena and all sharing at least one common need. सारे एक common need share कर रहे सी to get into print. To get into print here means कि वो चाहते सी उसे भी आप printed books च आइए कि सानू भी like ना books च represent किया जाए ठीक है. तो option की कह रहे हैं all sorts of books have all sorts of people have felt हर एक तरह के लोगों ने कि आ गया management consultancies, professional bodies, business schools सारे ने चीज़ feel की मतलब common सीगा that means all सारे दी सीगी है ठीक है. common opinion सीगी कि to get into print वो भी print का एक part बनन like उन्होंने भी books से represent किया जाए. so the option is C. next है अपने को containing information. third देखो reasons for the deserved success of some books. कुछ books दे deserved success दे reasons. the answer is H. हुन देखो इत्थे कुछ books दी example दी हुई है ठीक है. C. And his thoughts came through. He is among the handful of writers. भी किसी writer की गल हो रही है. Ducker writes beautiful and dear prose. ठीक है. She believes transcends the specific interest of management. Colkin भी कैसा इंसान है ठीक है कोई writer है ठीक है. That reaches out to a wider readership. What you get is this ठीक है. book के बारे दस्या होया ठीक है. That what you miss in such management writing. Charles Handy की गल की हुई है one of the most successful UK business writer है ठीक है. मतलब कुछ writers बारे दस्या होया है कि वो ऐदा दे ने और उन्हों दी books क्यों successful होंदियां नेगियां ठीक है. और थर्ड दी statement भी यही है कि reasons for deserved success of books. the third answer है H. Fourth, reasons why managers feel the need for advice. Managers advice दी ज़रूरत क्यों feel करते हैं. The answer for it is E. देखो despite the attempts of Frederick Taylor, the early 20th century founder of scientific management, to establish a solid rule-based foundation for the practice ठीक है. then देखो नीचे there is a constant requirement of reinterpretation, innovation and creative thinking. कहते रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की रीइंटरप्रेट करना मतलब कि कोई अगर चीज़ कहना तो उस चीज़ को रीइंटरप्रेट करना कि हाँ तुम कह रहे हो तो ये बारे ये हो सकता है नहीं हो सकता मतलब एक तरीके की एडवाइस ठीक है. तो इतने कॉन्सटेंट रिक्वायरमेंट फॉर एडवाइस सी इनोवेशन सी एंड क्रिएटिव थिंकिंग सी ठीक है. तो मतलब इतने सारा दस्या हुआ है यही इंफॉर्मेशन इसी पैराग्राफ से है कि क्यों मैनेजर्स नो एडवाइस की नीड फील हुई. सो द आंसर फॉर फोर्थ इज ई. Then अपना है फिफ्थ क्वेश्चन. अ बिलीफ दैट मैनेजमेंट बुक्स आर हाईली लाइकली टू बी वेरी पुअर. ए बिलीफ कि मैनेजमेंट बुक्स काफ़ी ज़्यादा लाइकली ने टू बी वेरी पुअर. द आंसर इज डी. देखो डी विच की कह रहे हैं कहते साइमन कॉल्किन कंट्रीब्यूटिंग एडिटर ऑफ ऑब्जर्वर्स मैनेजमेंट पेज एंड फॉर्मर एडिटर ऑफ मैनेजमेंट टुडे हैज फॉर्म्ड अ सिमिलर ओपिनियन. अलॉट इतने अलॉट गल हो रही है मैनेजमेंट बुक्स की. अलॉट इज प्रैटी डिप्रैसिंग होंगे तो उस अनइंप्रैसिव जहा स्टफ होंगे मतलब कोई वधिया काफ़ी इंप्रैसिव जहा स्टफ नहीं होंगे. फॉर इंस्टेंस नॉवल्स वगैरह कि इंप्रैसिव स्टफ होंगे उन्होंने सारे चाव नाल पढ़ते हैं बट कहते जो मैनेजमेंट बुक्स ने उन्होंने कोई इंप्रैसिव जहा स्टफ नहीं होंगे हैगा ठीक है. दैट इज़ वाई बी ए रीजनस ने लोग उन्होंने पढ़ना पसंद नहीं करते हैं ठीक है.
So comes the answer D, कि management books are highly likely to be very poor. Why? Because they are very depressing and they contain unimpressive stuff. Next is sixth, a reference to books not considered worth reviewing. कुछ ऐसियां बुक्स की रेफरेंस दी गई है जिहड़ियां रिव्यू दे लायक भी नहीं हैगियां, ठीक है। द आंसर फॉर इट इज सी। देखो इत्थे गल हो रही है द डायरैक्टर्स प्रीशियस कॉलम, कोई डायरैक्टर है इत्थे कैरल कैनेडी, डायरैक्टर्स प्रीशियस कॉलम इंसिस्ट टू वार्न रीडर्स ऑफ सर्टेन बुक। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਟੇਨ ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਵੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਦ ਲੀਡਰਸ ਐਜ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦ ਲੀਡਰਸ ਐਜ, ਸਮਡ ਅਪ ਹਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਥਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਥਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਹੂ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਦੇਅਰ ਮੈਨੀ ਬੀ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਵਰਥ ਰੀਡਿੰਗ ਟੇਕਿੰਗ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਥ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ my own competency of paying attention ran out on page 31, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ page 31 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 6 is C। Seventh, an example of a group of people who write particularly poor books, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ particularly poor books ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ is G। ਦੇਖੋ yet one of the virtues of these books is that they could be understood. There is a whole class of management texts that fail this basic test। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਚੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਕਲਾਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਸਟਫ ਵਿਦ ਜਾਰਗਨ, ਸੇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ among the worst offenders, ठीक है। there is a simple reason for this flight from plain English, they all use this jargon because they can't think clearly, मतलब jargon ਹੁੰਦਾ unclear ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ G। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ on to question 8 to 13, these are list of books। 8th देखो, it examines the success of books in the genre, कि ये success of books ਨੂੰ examine करती है। 8th ਇਹਦਾ आंसर है जी C, the next big idea, और ਇਹਦੀ लोकेशन है पैराग्राफ F 'ਚ, ठीक है। पैराग्राफ F 'ਚ देखो आ इत्थे बुक की गल चल रही है द नैक्सट बिग आइडिया, और ਇਹਦੀ ही थले सारी डिस्क्रिप्शन है। इनडायरैक्टली कहते की करती है, इट ट्रैक्स वन ऑफ द फिनोमिना पास्ट 20 years or so, द मैनेजमेंट ब्लॉकबस्टर्स विच वर्क वंडर्स फॉर पब्लिशर्स प्रॉफिट, मतलब मैनेजमेंट ब्लॉकबस्टर्स के बारे उन्होंने ट्रैक करती है कि उन्होंने की परफॉर्मेंस है की नहीं, ठीक है। अगे सारी वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो आह वाला 8th का आंसर आ गया C, भी ये दूसरी बुक्स की सक्सैस, ठीक है। ब्लॉकबस्टर होना, सक्सैस होना, दूसरी बुक्स की सक्सैस ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ट्रैक करती है, एग्जामिन करती है। 9th, स्टेटमेंट्स मेड इन इट वर लेटर प्रूव्ड इनकरैक्ट, कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ स्टेटमेंट ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ इनकरैक्ट प्रूव हो गया। 9th ਦਾ आंसर है D, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस। देखो in the case of in search of excellence, it was the rapid reversal of fortunes that turned several of exemplar companies into basket cases। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਚੂਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਸਕਟ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਟਰਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, disillusioned dawned with the realization that their slash and burn prescription for reviving corporate fortunes caused more problems than it solved। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਦੈਨ ਇਟ ਸੋਲਵਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟ ਵਰ ਲੇਟਰ ਪ੍ਰੂਵਡ ਇਨਕਰੈਕਟ। 10th देखो, it fails to live up to the claims made about it।
इट टेल्स मतलब ये लाइक उस चीज़ ਨੂੰ मीट नहीं कर पाई टू लिव अप टू द क्लेम्स मेड अबाउट इट। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾइक दावे किए गए सी वो चीज़ों ਨੂੰ पूरा नहीं कर पाई। द आंसर फॉर इट इज़ बी, इट्स इन पैराग्राफ सी। देखो इत्थे सीधा सीधा कहा गया देखो इत्थे The leader's edge summed up her irritation with authors who over promise and under deliver। जिन्होंने over promise करता लाइक दावे का बहुत करते भी साडी बुक कुछ ऐसा हो बट उस चीज़ ਨੂੰ under deliver किया मतलब वो चीज़ वधिया नहीं deliver कर पाए चंगे तरीके नाल। So the answer for 10th is B, the leader's edge। 11th advice given in it is seen to be actually harmful। कहते इस जी advice दी हुई सी actually harmful सी। The answer for it is E, re-engineering the corporation and it's in paragraph F। देखो re-engineering the corporation, a manifesto for business revolution, yet the early euphoria with which such books are greeted tends to wear off as the basics for the claim starts to look less than solid। ठीक है, मतलब कहते एक बुक ऐसी आ भी है ना बुक्स आर ग्रीटेड tends to wear off the basis for the claims starts to look less than solid। ठीक है, इत्थे की कह रहे हैं क्वेश्चन विच एडवाइस गिवन इन इट इज सीन टू बी एक्चुअली हार्मफुल और इत्थे भी की कह रहे हैं वियर ऑफ एज द बेसिस। ठीक है, मतलब वियर ऑफ करना उस चीज़ तो लाइक पिछा छुड़ा लेना या है ना ग्रीट टेंस करना वियर ऑफ करना कि उस चीज़ तो पिछा छुड़ा लेना या जी आपने कीतियां गल्लां ते नहीं खरी उतर पाई। द बेसिस फॉर द क्लेम्स स्टार्ट टू लुक लैस दैन सॉलिड लाइक वो गल्लां सॉलिड नहीं लगदियां हैगियां। ठीक है, दैट मीनस वो इम्प्रैक्टिकल गल्लां ने जिन्होंने दूसरिਆਂ ਨੂੰ हार्म करता। ठीक है, सो एडवाइस गिवन इन इट सीम टू बी एक्चुअली हार्मफुल। 12th है इट एग्जामिन्स द थ्योरीज ऑफ दोज हु हैव डेवलप्ड मैनेजमेंट थिंकिंग। ਇਹਦਾ आंसर है जी ए, गाइड टू द मैनेजमेंट गुरुज एंड इट्स इन पैराग्राफ सी। देखो author of guide to the management gurus an overview of the world's most influential management thinkers and their works। इस बुक च की है ओवरव्यू है वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट थिंकर्स ते उन्हां दे वर्क्स दी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी की कहा गया इट एग्जामिन्स द थ्योरीज ऑफ दोज हु डेवलप द मैनेजमेंट थिंकिंग ते उन्हां दे काम मतलब कि उन्हां दे वल्लों उन्हां दी थ्योरीज। ठीक है, the answer for 12th is management, the guide to the management guru। ठीक है, 13th it states die obvious in an unappealing way कि इन्हें मतलब एक die obvious या कोई गल है ठीक है उन्होंने बहुत ही unappealing जी वे चो किया। ठीक है, the answer is B, the leader's edge and the location is in C paragraph itself। देखो इत्थे लाइक सारा वही बुक बारे ही कहा गया है। ठीक है, जड़ी सीगी द लीडर्स एज समड अप हर इरीटेशन मतलब वो बुक बारे ही सारा कहा गया। ठीक है, भी मतलब इन्हें बहुत ही बेकार के तरीके नाल जड़ी भी अपनी गल कही गई। ठीक है, तां ही ये कह रही है कि 31 पेज तक तो इन्हें पढ़ी बट बाद दी अटेंशन उस बुक च बिल्कुल भी नहीं बनी हैगी बिकॉज वो बहुत ही अनअपीलिंग या बहुत ही इनअट्रैक्टिव या बहुत ही बोरिंग वे नाल गल्लां सी जड़ियां स्टेट कीतियां गईयां सीगियां। ठीक है, सो द आंसर फॉर 13 इज बी। Move on to the second paragraph, list of headings। देखो जी फर्स्ट पैराग्राफ ए दी हेडिंग हैगी आ द आंसर फॉर ए इज 8 अ स्ट्रॉन्गली हेल्ड बिलीफ। देखो यू माइट आस्क वाई मतलब कि कोई स्ट्रॉन्गली हेल्ड बिलीफ दसना। ठीक है, यू माइट आस्क वाई बी कंसर्नड अबाउट द आर्कीटैक्चर ऑफ अ स्टेडियम। ठीक है, भी एक स्टेडियम के आर्कीटैक्चर नाल क्यों कंसर्न रखना। ठीक है, बट बाद उन्हें सारे किते दस्या है कि हाँ एक स्टेडियम का आर्कीटैक्चर होना क्यों जरूरी है। उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ प्रेजेंट किया। दिस वन क्वेश्चन हैज़ डोमीनेटेड माई प्रोफैशनल लाइफ और ये क्वेश्चन ने वो प्रोफैशनल लाइफ में भी डोमीनेट किया होया कि हाँ किसी भी स्टेडियम का आर्कीटैक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स आंसर इज वन आई फाइंड माई सेल्फ कंटिन्यूअली रिहर्सिंग। भी ਇਹਦਾ आंसर मतलब बहुत ज़्यादा मैं ना कंटिन्यूअली रिहर्स कर रहा भी हाँ इको गल बार बार कहनी बहुत कुछ एम्फोसाइज करना। ठीक है, सो द आंसर फॉर पैराग्राफ ए इज स्ट्रॉन्गली हेल्ड बिलीफ मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखी बैठा है भी हाँ स्टेडियम्स का वास्ते आर्कीटैक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि वो इसकी सारी लाइफ प्रोफैशनल लाइफ डोमीनेट कर रहा है। ठीक है जी, नाउ पैराग्राफ बी
The answer for B is 4, a strong contrast. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, but in paragraph B, but then maybe as many detractors have labeled me in the past, I'm a snob. Maybe I should just accept that sports and its associated accoutrements and products is an essentially tacky and ephemeral business, while stadium design is all too often driven by pragmatics and penny pictures. ठीक है, but दूसरा व्यू की कहता है, ਕਹਿੰਦੇ कि स्टेडियम की आर्कीटैक्चर इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिन्नी ज़्यादा उसकी स्पोर्ट है, ਉਹਦੇ एसोसीएटेड अकाउंटमेंट्स ने, प्रोडक्ट्स ने, ठीक है, ਉਹਦੀ टैकी एंड एफेमेरल बिजनेस, ठीक है। तो मतलब इतने कह रहे हैं कि भी वाइल स्टेडियम डिजाइन इज ऑल टू ऑफन ड्रिवन बाय पैगमैटिक्स एंड पैनी पिंचर्स, मतलब पैनी पिंचर्स जिन्होंने को होर कोई काम नहीं गा भी वो डिजाइन चक के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इतने बिल्कुल एक ऑपोजिट व्यू प्रेजेंट की गई है। फर्स्ट से कह रहे हैं कि आर्कीटैक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, सेकेंड कह रहे हैं कि आर्कीटैक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों भी आर्कीटैक्चर के अलावा होर भी चीज़ें इंपॉर्टेंट ने। तो द आंसर फॉर 15 इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट 4। Then is 16, paragraph C. Paragraph C, the answer has 6, a promising beginning. देखो इत्थे ओलंपिक्स की गल की गई, होमबुश बे वॉज अ साइट ऑफ ओलंपिक्स, मतलब एक इत्थे बिगनिंग जी दसी गई कि हाँ वधिया स्टेडियम्स बनने कदों स्टार्ट हुए, ठीक है। इत्थे सारा दसिया होया है कि सिडनी अनडाउटेडली सेट्स अर्बन रीजनरेशन इन अ होल इंप्रेसिव वे टू एन आउटसाइडर। द 760 हैक्टेयर जिहड़ा बनिया होया स्टेडियम है, ठीक है, तो इतने इंडस्ट्रीयल यूनिट्स वगैरह, मतलब उत्थे सारी दसी हुई है कि एक वधिया स्टेडियम कदों बनया सी, एक बिगनिंग कदों हुई सी वधिया आर्कीटैक्चर वाले स्टेडियम बनाने दी, ठीक है। इस बारे में ये दसिया गया। सो द आंसर इज स्ट्रॉन्ग, अ प्रॉमिसिंग बिगनिंग। दैन इज 17, पैराग्राफ डी, द आंसर फॉर इट इज 5, अ स्पैशल सैटअप, ठीक है जी। हुण इस सारा आपां दसिया गया कि उस स्टेडियम का की सैटअप सी, की सी उत्थे एट द सेंटर ऑफ द होमबुश, स्पैशल जिहड़ा सीगा उहदा सैटअप सी, दसिया होया। ले द मेन वेन्यू फॉर ओलंपिक्स स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, इट वॉज फंडेड बाय मीनस ऑफ अ बूथ contract which meant that Stadium Australia consortium led by the contractors Multiplex and the financiers Hambros bore bulk of the construction cost in return for which it was allowed to, and मतलब सारा एक स्पैशल सैटअप दसिया होया कि की सीगा भी सेंटर ते स्टेडियम दे सीगा, एंड आफ्टर दैट किमें की कॉन्ट्रैक्ट होया सीगा, ठीक है, लाइक सारा स्पैशल उहदा सैटअप, ठीक है जी। नैक्सट आंदा अपने को पैराग्राफ ई, इहदा आंसर है सेकंड, एन ओवरऑल रिक्वायरमेंट। हुण देखो स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया वॉज द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली ओलंपिक स्टेडियम एवर, बट एवरी सिंगल प्रोडक्ट एंड मटीरियल हैड टू मीट स्ट्रिक्ट गाइडलाइनस। कहते हरेक प्रोडक्ट हरेक मटीरियल जिहड़ा यूज किया होया सी, कहते उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइनस मीट करनियां ही सीगियां। वो गाइडलाइनस की कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं, तो सारे पैराग्राफ से ओवरऑल गल की गई है कि की रिक्वायरमेंट सीगियां, ठीक है। तो वो सारा दसिया होया कि सो द आंसर इज सेकंड, एन ओवरऑल रिक्वायरमेंट। दैन आर ट्रू फॉल्स 19 to 22, 19th इज नॉट गिवन, किते भी ये गल नहीं कही गई कि पब्लिक बैटर क्वालिटी ऑफ स्टेडियम डिजाइन डिमांड कर रही थी। 20th is true, it is possible that stadium design has an effect on people's behavior in life in general, ठीक है जी। यदि लोकेशन है पैराग्राफ ए, पैराग्राफ ए ते देखो मतलब इतने सॉरी सारा दसिया होया कि इफ वन एक्सेप्ट्स दैट सपोर्टिंग एंडेवर इज एज इंपॉर्टेंट एन आउटलेट फॉर ह्यूमन एक्सप्रैशन, ह्यूमन एक्सप्रैशन की गल की गई है, एक्सप्रैशनस मीनस बिहेवियर, ठीक है। कहते अगर एक सपोर्टिंग एंडेवर नूं उन्ने ही तरीके नाल एक्सैप्ट करता, इंपॉर्टेंटली एक्सैप्ट करता जिद्दां कि थिएटर और सिनेमा नूं एक्सैप्ट करता, तो मतलब बिल्डिंग्स नूं ग्रैंड बनाना क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इत्थे सीधी जी गल कही गई है कि बिल्डिंग्स का आर्कीटैक्चर लोगों के एक्सप्रैशन नूं, लोगों के बिहेवियर नूं अफेक्ट करता है इन सम वे और दी अदर। सो द आंसर फॉर 20th इज ट्रू। 21st, some stadiums have come in for a lot more criticism than others. Criticism दी सारे पैसेज विच किते कोई गल नहीं हुई, ठीक है। So the answer for 21 is not given. 22nd, designers of previous Olympic stadiums could easily have produced far better designs. कहते ओलंपिक स्टेडियम के डिजाइनर ने फार बैटर डिजाइन प्रोड्यूस किते कर सकते थे वो। हुण देखो होमबुश बे वॉज द मेन साइट ऑफ पैराग्राफ सी, होमबुश बे वॉज द मेन साइट ऑफ
साइट ऑफ द मेन ओलंपिक गेम्स कंपलैक्स फॉर द सिडनी ओलंपिक्स ऑफ 2000 मतलब कहते होमबुश बे है कोई स्टेडियम से जिथे ओलंपिक्स हुई सी मेन साइट से ओलंपिक की ठीक है एंड दैन इन्होंने सारे किते लाइक वो बारे बहुत वधिया वधिया दसिया हुआ ना कि किन्ने एरिए च बनया हुआ से उत्थे की फैसिलिटीज सी की नहीं मतलब बहुत ही वधिया स्टेडियम सी वो ठीक है बट इतने क्वेश्चन च कह रहे हैं भी वो इस तो भी ज़्यादा कुछ बैटर बना सकते थे बट ये जो स्टेडियम है अपने आप च पूरा परफेक्ट है ठीक है मतलब इतने इन्नी सारी दसिया हुई ने इट वॉज एक्चुअली सम 1.3 billion euro worth of construction and reclamation was commissioned, all of it crucially within the 9 to post Olympic usage guidelines. ठीक है ensure that 2000 games would be most environmentally friendly ever. What's more, much of the work was good looking, distinctive and likely. जिन्ना much of the work से good looking सी distinctive सी ते lively सीगा. There is a reflection of Australian spirit. मतलब ओवरऑल दसिया गया कि वो बहुत ही बढ़िया स्टेडियम सीगा ठीक है मतलब परफेक्ट सी अपने आप बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि इस तो बैटर बना सकते थे ठीक है सो द आंसर इज फॉल्स नाउ कम टू क्वेश्चन 23 to 26 इट्स ऑल इन पैराग्राफ ई देखो 23rd मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ डैश इन पब्लिक एरियाज देखो in order to reduce energy cost the design allowed for natural lighting in as many public areas as possible ठीक है so the public areas to maximum possible amount of natural lighting the answer for 23rd is natural lighting then 24th passive ventilation and not but इसे देखो wherever possible passive ventilation was used instead of mechanical air conditioning so the answer is mechanical air conditioning कहते passive ventilation चलो but not mechanical air conditioning 25th is storage tank for dash storage tank किस वास्ते चाहिए सी उन्होंने it was storm water runoff was collected for toilet flushing ठीक है इहदे वास्ते की चाहिए सी स्टोरेज टैंक ठीक है तो इसका आंसर आ गया स्टॉर्म वाटर नेक्स्ट इज 26 स्टोरेज टैंक फॉर रेन वाटर 26 रेन वाटर स्टोरेज टैंक रेन वाटर स्टोर कर लिया देन वो किहदे वास्ते यूज करता है रेन वाटर कलैक्टेड फ्रॉम द रूफ ran off into storage tank where it could be tapped for pitch irrigation. So the answer is pitch irrigation. Next is paragraph 3rd and the first 27 to 29 are options and you have to choose 3 from them. देखो which 3 of the following are problems the writer encountered when conducting his study जब स्टडी कंडक्ट कर रहे थे तो उन्हें किहड़ियां प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कीतियां इसका आंसर है C D E C is the diverse nature of population at that area देखो इसका आंसर हैगा जी पैराग्राफ इन्हां सारे पैराग्राफ्स नूं 1 to 5 पहला 6 नंबरिंग कर लो 6 पैराग्राफ्स ने देखो फर्स्ट हैगा अपना आंसर सी द डाइवर्स नेचर ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एरिया देखो इसका आंसर है पैराग्राफ पैराग्राफ 3rd टू स्टेट दैट अ हाउसहोल्ड हैड बीन इंक्लूडेड विद इन द स्टडीज टू ग्लॉस ओवर अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ डिग्रीज ऑफ इन्वॉल्वमेंट उत्थे काफ़ी ज़्यादा की सी डाइवर्सिटी सी ठीक है सो द डाइवर्स नेचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द एरिया नेक्स्ट अपन आया डी द रिलक्टेंस ऑफ पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल हैबिट्स इट्स इन पैराग्राफ 1 कहते रिलक्टेंट सीगे पीपल मतलब हिचकिचा रहे थे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने थे गिवन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इंटेंसली प्राइवेट नेचर नहीं जो बहुत अपनी लाइक पर्सनल लाइफ में प्राइवेट रखना चाहते थे दैट मीनस कुछ नहीं शेयर करना चाहते और रिलक्टेंट सीगे ऑप्शन डी दैन इज ई द फैक्ट दैट ही वॉज अनेबल टू स्टडी सम पीपल्स हैबिट्स एज मच एज अदर कि कुछ लोगों दी हैबिट्स उन्हें ज़्यादा स्टडी कर लिया कुछ दियाँ घट कर पाया इसका आंसर भी है अपने को डी विच देखो इतने कह रहे हैं कुछ द मिनिमम रिक्वायरमेंट की सी सिंपली दैट अ हाउस होल्डर हैज़ अग्रीड टू बी इंटरव्यूड कि एक हाउस होल्डर ने एग्री कर लिया भी हाँ असं वो इंटरव्यू लै सकते हैं अबाउट देयर शॉपिंग विच वुड इंक्लूड लोकल शॉपिंग परेड शॉपिंग सेंटर्स एंड सुपर मार्केट
कुछ तो लोग इदां दे सी बट अदर एक्सट्रीम ते की सीगा फैमिली दैट वी हैव कम टू नो वेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर भी उन्होंने नाल प्रॉपर इंटरैक्शन हो रही थी ठीक है फॉर्मल प्रेजेंस नहीं चाहिए थी उन्होंने घर च ठीक है इट ऑल्सो मेंट अकंपनी दम ऑन वन ऑफ सेवरल इवेंट्स उन्होंने इस तरह मतलब कितने उन्होंने चले जाना इस तरह उन्होंने शॉपिंग ट्रिप से या एक्टिविटीज़ एसोसीएटेड ये वो ठीक है तो कुछ लोगों नाल तो सिर्फ एक जनरल जी इंटरव्यू हुई कुछ लोगों नालों प्रॉपर उन्होंने अकंपनी किया जिथे भी गए दैट मीनस कुछ लोगों ने उन्होंने ज़्यादा स्टडी किया ठीक है सो द आंसर इज ई नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स सॉरी यस नो नॉट गिवन सो 30 देखो 30 है एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म इज मोर वाइडली अप्लाइड दैन एंथ्रोपोलॉजिकल जनरलाइजेशन ये गल कितने नहीं कहेंगे कि रिलेटिविज्म ज़्यादा अप्लाई किया जाता है एज कम्पेयर टू जनरलाइजेशन सो द आंसर फॉर 30 इज नॉट गिवन 31st शॉपिंग lends itself to analysis based on एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म कि जी शॉपिंग है अपने आप को एनालिसिस की करती है लैंड कर देंगी है बेस्ड ऑन रिलेटिविज्म एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म द आंसर फॉर 31st इज यस एंड द लोकेशन इज इन पैराग्राफ 4 देखो इतने कह रहे ने द ट्रेडिशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म लीड्स टू एन एम्फेसिस अपॉन डिफरेंस एंड देयर आर मैनी वेज इन विच शॉपिंग कैन हेल्प अस एलुसिडेट डिफरेंसिस कहते एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म की करता एम्फेसिस प्ले करता एम्फेसिस पुट करता डिफरेंस उत्ते ते अगे डिफरेंस कित्थों आंदा है शॉपिंग तो सो ठीक है तो शॉपिंग की करती है डिफरेंसिस की वजह नाल जिहड़ी शॉपिंग आ और रिलेटिविज्म अपने आप को लैंड कर देंगी है ठीक है मतलब शॉपिंग आपको डिफरेंसिस एलुसिडेट करने हेल्प करती है अगे डिफरेंसिस की एनालाइज होंगे एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म सो ठीक है शॉपिंग lends itself to analysis based on anthropological relativism 32nd है generalizations about shopping are possible इसका आंसर है जी yes and the location is in 4th paragraph ठीक है देखो इतने उन्होंने दो अप्रोचेस शेयर की ने ऑथर ने एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटिविज्म एक जनरलिज्म तो ठीक है इन दिस एसे आई वांट टू एम्फसाइज द लेटर अप्रोच कहना मैं लेटर अप्रोच को एम्फसाइज करूँगा लेटर अप्रोच केड़ी है एंथ्रोपोलॉजिकल जनरलाइजेशन ठीक है तो ऑथर इस चीज़ को की कर रहा है एम्फसाइज कर रहा है दैट मीनस जनरलाइजेशन कर रहा है वो ठीक है सो क्वेश्चन की कह रहे हैं शॉपिंग जनरलाइजेशन अबाउट शॉपिंग इज पॉसिबल यस इट इज पॉसिबल 33rd टायर कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम हिज स्टडी विल कन्फर्म सम ऑफ द फाइंडिंग ऑफ अदर रिसर्च दी एडी स्टडी दी जो कंक्लूजन्स होंगे दूसरी स्टडीज़ दी फाइंडिंग्स की करनगियां कन्फर्म करनगियां देखो पैराग्राफ 5 the theory that I will propose is certainly at odds with most of the literature on this topic कहते जिहड़ी थ्योरी मैं दे रहा भी जिहड़ी कंक्लूजन इहदी थ्योरी तो आउणगियां वो किते ने एट ऑड्स मीनस एट कॉन्ट्राडिक्शन ने कि भी मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑन दिस टॉपिक कहते इस टॉपिक से जिन्ना भी लिटरेचर आ मीनस जिन्नियां भी फाइंडिंग्स ने रिसर्च है जिन्नियां भी थ्योरीज ने इस टॉपिक उत्ते शॉपिंग के टॉपिक उत्ते कहना मेरी वाली थ्योरी इहदे नाल कॉन्ट्राडिक्ट करू बट क्वेश्चन च कह रहे ने भी कन्फर्म करूगी ठीक है सो द आंसर इज नो 34th शॉपिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ बेसिकली अनसेल्फिश एक्टिविटी ठीक है शॉपिंग कहते एक अनसेल्फिश एक्टिविटी है पैराग्राफ 5 देखो शॉपिंग इज देयरफॉर नॉट बेस्ट अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिविजुअलाइजिंग एक्ट इंडिविजुअलिस्टिक मीनस खुद बारे सोचने वाला या सेल्फिश एक्ट नहीं हैगा ठीक है ये अनसेल्फिश है बिकॉज इट्स नॉट इंडिविजुअलिस्टिक ठीक है रादर बेस्ट ऑफ बाइंग गुड्स इन मेनली डायरेक्टेड एट टू फॉर्म्स ऑफ अदरनेस मतलब दूसरों बारे सोचने से ज़्यादा इसका की फोकस रहता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअलिस्टिक ठीक है सो द आंसर इज यस 35th पीपल समटाइम एनालाइज देयर ओन मोटिव्स व्हेन दे आर शॉपिंग किते गल नहीं कही गई कि लोग अपने खुद के मोटिव्स एनालाइज करते हैं सो द आंसर फॉर 35th इज नॉट गिवन 36 द एक्चुअल गुड्स बॉट आर द प्राइमरी कंसर्न इन द एक्टिविटी ऑफ शॉपिंग कहते जिहड़ियां गुड्स खरीदिया जांदियां ने और शॉपिंग के केस का प्राइमरी कंसर्न होंदियां ने द आंसर फॉर इट इज़ नो एंड द लोकेशन इज इन 5th पैराग्राफ देखो relationship to be more general goal the second of these is relationship to be more general goal कहते ज़्यादा general goal की हुंदा relationship हुंदा which transcends any immediate utility and is best understood and blah blah blah
ठीक है, मतलब इत्थे क्वेश्चन कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ बस एक्चुअल गुड्स खरीदते हैं ਉਹੀ प्राइमरी कंसर्न होंगे, बट इत्थे कह रहे हैं प्राइमरी मीनस जनरल, बट इत्थे कह रहे हैं कि रिलेशनशिप इज अ मोर जनरल गोल। ठीक है, सो द आंसर इज नो। 37 इट वॉज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द आउटकम्स ऑफ स्टडी बिफोर एम्बार्किंग ऑन इट। कहते ये पॉसिबल सीगा कि स्टडी के आउटकम्स प्रोडिक्ट किए जा सकते थे इनू स्टार्ट करने तो पहला, बट इत्थे कह रहे हैं पैराग्राफ 6 दैट it never occurred to me at any stage when carrying out the anthropology and ethnography that I should consider the topic। ठीक है, मतलब ये इत्थे तक कह रहे हैं कि लाइक उन्होंने किसी भी स्टेज पे चीज़ नहीं आई कि वो कर लवे। it never occurred to me at any stage ठीक है, टू स्टेट दैट अ हाउस होल्ड सॉरी मतलब उन्होंने किसी स्टेज पे ये चीज़ अकर नहीं हुई कि वो की करे कैरिंग आउट एथनोग्राफी दैट आई शुड कंसीडर द टॉपिक ऑफ सैक्रीफाइस एज रेलिवेंट। ठीक है, मतलब वो कहना मैनू तो किसी चीज़ से चीज़ अकर ही नहीं हुई कि मैं इस टॉपिक को कंसीडर भी करा। ठीक है, बट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि आउटकम को प्रोडिक्ट कर सकता सी, बट उन्हें इस चीज़ को कदे कंसीडर ही नहीं किया। सो द आंसर इज नॉट नो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आंसर। द सब्जेक्ट ऑफ रिटन रिसर्च द राइटर फर्स्ट थॉट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हिज स्टडी वॉज। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट केड़ा सीगा जिहड़ा उहदी स्टडी नाल डायरेक्टली कंटैक्ट सीगा। ठीक है, द आंसर इज थ्रिफ्ट। ठीक है, देखो ये हैगा पैराग्राफ 6 च। ठीक है, the literature that seemed most relevant in the initial analysis of London material was that on thrift ते सीगा। ठीक है, so the answer for 38 is thrift। 39th research the writer has been most inspired by was created out by। कहते जिहड़ी रिसर्च तो राइटर मोस्ट इंस्पायर्ड सी किहदे वालों कैरी आउट की गई थी। ठीक है, देखो since I will argue that it is a classical work on sacrifice and in particular the foundation of its modern study by Hubbard and Moss that has become the primary ground for my interpretation। कहने मेरी interpretation का primary ground जिहड़ी theory बनी study बनी वो सी Hubbard and Moss की study। So the answer for 39th is Hubbard and Moss। 40 the writer mostly does not use the meaning of sacrifice that he regards। देखो it is important however when reading the following account to note that I use the word sacrifice I only rarely prefer to the colloquial sense of the term। ठीक है, मतलब इत्थे की कह रहे हैं does not use the meaning of sacrifice that he regards colloquial। ठीक है, भी जिहड़ी चीज़ वो मतलब कदे भी नहीं यूज़ करता, रेयरली ही यूज़ करता जिहड़ी सेंस वो हैगा दा आंसर colloquial और metaphorical भी सही है दा आंसर। The metaphorical use of any term I have explained within the subsequent discussion। Okay, so the answer is colloquial or metaphorical। So this is the end of your reading. Thank you.